ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। So we have carried out 2 development trials. We are pretty soon going to do a 3rd development trial. Once these development trials are over, we'll offer it to the user for user evaluation trials, and then this missile should get inducted. We are very confident with this system, and it will be a game changer for our services. This will have much more capabilities than our current BrahMos missile, because it travels much faster than what BrahMos can, and it will have a much higher range. भारत ने एक बार फिर दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि अगर बात राष्ट्रीय सुरक्षा की है तो भारत किसी से पीछे नहीं है। 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर जब डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल को दुनिया के सामने दिखा दिया, तब शायद बहुत से लोगों को इसकी असली ताकत का अंदाजा नहीं था। लेकिन अब डीआरडीओ चीफ के ताजा बयान ने साफ कर दिया है कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक में तेजी से निर्णायक बढ़त बना रहा है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब रिपोर्टर ने डीआरडीओ चीफ से सवाल किया कि सर, ये भारत की पहली और एकमात्र हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये किस स्टेज पर है, तो जवाब साफ था, आत्मविश्वास से भरा और बेहद अहम। डीआरडीओ चीफ ने बताया कि इस मिसाइल के 2 डेवलपमेंट ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। तीसरा विकास परीक्षण बहुत जल्द होने वाला है। यानी भारत अब सिर्फ टेस्टिंग नहीं कर रहा, अब ये सिस्टम मैच्योरिटी के बेहद करीब है। अब डीआरडीओ चीफ ने क्या कुछ बताया, आप भी जरा ध्यान से सुनिए। Sir, on this Republic Day, we saw the DRDO showcase the long-range anti-ship hypersonic missile. Now, this is the first and only hypersonic missile other than the conventional ballistic missiles that are in our arsenal. Can you tell us about this missile, sir? What is the stage of development? So we have carried out 2 development trials. We are pretty soon going to do a 3rd development trial. Once these development trials are over, we'll offer it to the user for user evaluation trials, and then this missile should get inducted. We are very confident with this system, and it will be a game changer for our services. So, what we have learned about this missile system is that it travels at speeds at high Mach speeds, around 5 to 6 Mach. Now, that is much higher than what the BrahMos does. And the range is also higher. Yes. So, you think this is going to be the next big thing, like what we saw the BrahMos' performance during Operation Sindoor? How do you see this missile developing, sir? Yeah, this will have much more capabilities than our current BrahMos missile, because it travels much faster than what BrahMos can, and it will have a much higher range. So it will definitely add to the arsenal of our services. And right now it's only the anti-ship version, sir. So, but we are also working on the land attack for the same missile. But that is slightly at the earlier stages than the anti-ship role. And sir, anything for the air-launched version, like what we have for the BrahMos? Currently, no, because the air-launch version, we have limitation on the weight of the missile. So we have plans to take up the air-launch version, but that will be after this land-launched or ship-launch versions are completed. अब आते हैं सबसे खतरनाक हिस्से पर। डीआरडीओ चीफ ने बताया कि ये मिसाइल मैक 5 से मैक 6 की रफ्तार से उड़ती है, यानी आवाज की गति से 5 से 6 गुना तेज। तुलना के लिए ब्रह्मोस लगभग 3 मैक से उड़ती है, नई हाइपरसोनिक मिसाइल 6 मैक से उड़ती है। इसका मतलब दुश्मन के रडार के पास रिएक्शन का समय नहीं रहेगा, एयर डिफेंस सिस्टम बेकार हो जाता है। इसलिए दुनिया की बड़ी ताकतें अमेरिका, रूस और चीन हाइपरसोनिक हथियारों को भविष्य के युद्ध का निर्णायक फैक्टर मानती है, और अब भारत भी इस क्लब में मजबूती से खड़ा है। ये मिसाइल फिलहाल
लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल है, मतलब दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्धपोत, बड़े नेवल प्लेटफॉर्म सब सीधे निशाने पर। मैक 6 की स्पीड पर जहाज को बचने का मौका नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर भी फेल हो जाएगा, यानी भारत हिंद महासागर में भारत की नेवल डोमिनेंस और मजबूत हो जाएगी। अब इसके आगे रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि क्या ये अगली पीढ़ी की चीज बनेगी, जैसे ब्रह्मोस ने ऑपरेशंस में कमाल दिखाया। तो डीआरडीओ चीफ का बयान बहुत अहम था। उन्होंने कहा हाँ, इससे ब्रह्मोस की तुलना में कहीं ज्यादा क्षमताएं होंगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज्यादा स्पीड है, ज्यादा रेंज है, ज्यादा सर्वाइवेबिलिटी है और भविष्य में मल्टी रोल क्षमता से ये लैस है, यानी ब्रह्मोस से एक पीढ़ी आगे। आज दुनिया में सिर्फ कुछ गिने चुने देशों के पास ऑपरेशनल हाइपरसोनिक हथियार है और भारत स्वदेशी तकनीक से, स्वदेशी वैज्ञानिकों के दम पर तेजी से उस लिस्ट में शामिल हो रहा है। इसका मतलब है भारत का डिफेंस पावर कई गुना बढ़ चुका है। दुश्मन को अब हर कदम सोच समझकर रखना होगा। खैर, डीआरडीओ का यह हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि भारत के आत्मनिर्भर रक्षा भविष्य की झलक है। मैक 6 की रफ्तार, लंबी रेंज और अजेय क्षमता के साथ ये मिसाइल आने वाले समय में युद्ध की परिभाषा बदल सकती है।